Hello kids, how are you all? I hope you all are good. So today we will learn social science, and in social science we will learn geography, and in geography we will learn our first lesson. The name of the lesson is resources. This is the first part of this lesson. Okay, so take out your books. First I will read and then I will explain. So concentrate kids. Mona and Raju were helping Amma to clean their houses. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are the resources. What is resources? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resource: the water you drink when you are thirsty, electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study, all the resource. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. So here is a small story about resource. What is resource? Anyone? You know what is resource? Kids, resource एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स आर रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स होती है. आप जब आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने इन्वायरमेंट में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं है पर वो आपके लिए रिसोर्स है. जैसे अब वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बस हो गया, रिक्शा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, कुछ भी चीज़ आप जो खाने की चीज़ यूज़ करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो भी एक रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नीड है, वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है, तो वो एक रिसोर्स है. कोई भी चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है वो क्या हो जाता है? रिसोर्स हो जाता है. ओके क्लियर? इट इज़ क्लियर व्हाट इज रिसोर्स? एनीथिंग दैट इज सेटिस्फाई नीड इज़ अ रिसोर्स. सेटिस्फाई अवर नीड इज़ अ रिसोर्स. सो लेट्स प्रोसीड एंड नो मोर. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, vegetable, textbook has something in common. They all have been used by you, so they have utility. Utility or unstability is what makes an object or substance a resource. How does something can be a resource? Raju now wanted to know. Amma told the children that the thing became resource only when they have value. It is use or utility give it a value. All resources have some value, said Amma. Value means what? Some resources have economic value, some do not. For example, metal have an economic value, a beautiful landscape may not. Both are important and satisfy human needs. Some resources can become economically valuable with the time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they can patent and sold by a medical firm tomorrow, they could be become economically valued. Okay. सो राजू ने क्वेश्चन पूछा कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है? जब हम उसका यूज़ करते हैं और उसको हम वैल्यू देते हैं तब वो रिसोर्स बन जाती है. वैल्यू मीन्स वर्ड. कुछ चीज़ें हमारे पास वैल्यू इकोनॉमिकली वैल्यूबल मतलब पैसे के लिए वैल्यूबल होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं. जैसे मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, ये सब क्या होती है? इकोनॉमिकली वैल्यूबल होती है. वो हमारे पास होगा तो हमें बहुत खुशी होता है, वो इकोनॉमिक पैसा हमें देती है. पर एक जब आप किसी चीज़ को ब्यूटीफुली चीज़ों को देखते हो, वो आपको बहुत अंदर से सुकून प्रोवाइड करती है. तो दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें सेटिस्फाई करती है. ठीक है, तो दोनों चीज़ें अपने वे में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या इकोनॉमिकली ना हो. कुछ रिसोर्सेज जो है वैल्यूबल होती हैं टाइम के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि ग्रैंड मदर का जो होम रेमेडी है वो कमर्शियल वैल्यूबल आज के दिन में नहीं है, बट कभी हो सकता है. कैसे? जब आप उसको किसी भी मेडिकल फॉर्म में कल को बेचोगे और उसका जब वैल्यू बढ़ेगा, जब लोग उसको मांगेंगे, जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली एक इकोनॉमिकल वैल्यूबल हो जाएगा. तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं जो टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूबल हो जाती हैं. टाइम एंड टेक्नोलॉजीज आर टू important factor that can change the substance into resource. Both are related to needs of the people. People themselves are most important resource. It is the idea, knowledge, invention, discovery that led to be the creation of more resource. Each discovery or invention led to many others. The discovery of fire led to be the practice of cooking. Other processes, while invention of wheel unlimitedly resulted in development of newer modes of transport. Technology to create a hydroelectricity has turned energy in a fast flowing water into an important resource. Okay,
सो टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो मेजर फैक्टर है जो किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स में बना सकती है। जो लोग हैं वो बहुत, जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, वो खुद एक बहुत बड़े रिसोर्स है, क्योंकि उनकी आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरी से ही हम और रिसोर्सेज को बना सकते हैं। अब डिस्कवरी जो फायर का है वो कुकिंग के लिए हुआ, वो फायर का डिस्कवरी हुआ तो हम कुकिंग कर सकते हैं। फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ तो आज के डेट में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के कई ज़रिए हैं। फिर जब टेक्नोलॉजी बढ़ी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का वो हुआ तो एनर्जी को, वाटर को हम लोगों ने एनर्जी के फॉर्म में यूज़ किया। सो हम एक बहुत बड़े रिसोर्स हैं, हम एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। हमारे इन्वेंशंस और डिस्कवरी से ही हम और भी सारे रिसोर्स को जन्म दे सकते हैं, और भी रिसोर्सेज को हम बना सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड एंड नो मोर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली classified into natural, human made and human. Natural resources are that drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. In some cases, tools and technologies may be used to use natural resources in their बेस्ट पॉसिबल वे। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। इस वीडियो में हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में जानेंगे। नेचुरल रिसोर्स जो वो होता है जो नेचर के थ्रू दिया हुआ है और उसमें कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन, विदाउट मॉडिफिकेशन हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, सॉइल मिनरल, ये सारे जो हैं हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, पर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को टूल और टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ किया जाता है ताकि उस नेचुरल रिसोर्सेज को हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें। अब नेचुरल रिसोर्स जो है टू कैटेगरी में डिवाइडेड है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. Yet carefully use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stocks. Water seems to be unlimited renewable resource, but shortage and drying up natural resource of water resource is a major problem in many part of the world. अब रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब वो होता है जो कि तुरंत रिन्यूड हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो बहुत सारे 2 ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से किसी को उसको असर नहीं होता है, जैसे सोलार हो गया और विंड एनर्जी हो गई, ओके। बट बहुत सारे ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो कि अगर हम लोग केयरलेसली उसको यूज़ करेंगे तो उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। और वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर जो है वो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट उसको अगर हम लोग केयरफुली यूज़ नहीं करें तो आज हमें शॉर्टेज हो जाएगी उस चीज़ों की, वाटर की, और बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा जो कि पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ेगा जब वो हमारे पास नहीं होगा। बिना पानी के हम रह नहीं सकते हैं, आपको ये चीज़ पता है। और आज के डेट में हम लोग डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमने पेड़ों को कट करना चालू कर दिया है, हमारे पास फॉरेस्ट नहीं है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो हम एयर नहीं ले पाएंगे, फ्रेश एयर हमें नहीं मिल पाएगा, तो हमें बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स, हमारे हेल्थ इश्यूज़ को भी लेके बहुत हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे ऑटोमेटिक हमारे अंदर आने लगेगी। तो जो भगवान ने हमें दिया है उसको हमें केयरफुली और बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज which has limited stock. Once the stocks are exhausted, it take thousands of years to renewed and replenished. Since this period is much more than the human lifespan. तो नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल वो होता है कि जिसका एक लिमिटेड स्टॉक होता है, ठीक है। अगर वो एक बार ख़त्म हो गया, अगर वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक बार ख़त्म हो गया तो उसको वापस बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। वो एक इंसान के ज़िंदगी, एक लाइफ स्पैन से भी ज़्यादा टाइम लगता है उसको वापस से रिन्यूड करने में। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो उन सारे चीज़ों को हमें बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे कौन कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसको हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर सब एग्जाम्पल। ये सारे जो है वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है।
और अगर आप उनको, ये एक लिमिटेड स्टॉक है, अगर आप उनको यूज़ करके ख़त्म करोगे केयरलेसली तो वो कल को आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना आप उसको यूज़ कर पाओगे. The distribution of natural resource depend upon the number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो उनके फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है अनइक्वल है बिकॉज द फैक्टर जो हमारे अर्थ पे है, जो उनको अफेक्ट करती है, वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर है. So kids, we will end this video here. Okay, for knowing more, stay tuned for next part of this video. Okay, तो next part of the video में हम human made resource और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि और सारी चीज़ें इसमें क्या क्या है. ओके किड्स, सो बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.